Okay, so last time in our class yesterday, or the recording which I sent, we were discussing about series RLC circuit. And in series RLC circuit, we were concerned with the analysis of what is called as a resonance. Okay, and you understood and found a few conditions for resonance to occur in that particular circuit. Okay, and we also did the analysis of what is called as quality factor. We also did the analysis of what is called as bandwidth. We did something as the upper and the lower cutoff frequencies and its relationship with the maximum value of current or the maximum value of power. Okay, at least till this point we have done uh, in our class. Today we will discuss about the parallel RLC circuit. Okay, the parallel RLC circuit in which you have a source, you have a resistance, an inductance, and a capacitance. And you see that all three are now in parallel. Okay, all three are in parallel. And it is given that, let's say this is equals to R, the value of inductance is L, and the value of capacitance is C. You can assume that this time a current source is given because it would be easy for me to analyze it in a node analysis fashion or in current source way. So it is given like I angle 0. So in a way you can write it as I m sine omega t plus 0. That means I am sine omega t without any phase difference. It's like this. Okay, so such a circuit can be easily analyzed in admittance fashion. So because then I would be able to apply the node analysis in it or the KVL law in this fashion. See, this is I, and if I convert R, L, and C over here, all these are in parallel. If I convert this into the Y or the admittance notation or admittance representation, then you know that one of the form of Ohm's law is also this. We write Y into I is equals to, or we can write it as, let me say, वैसे लिखते हैं हम V is equals to IR. Okay, we can also write it as I is equals to VG. Okay, I is equals to VG, or I can say that we can write it as I is equals to VY. If we write V is equals to IZ, we can also write it as I is equals to VY. तो इस टर्मिनल के अक्रॉस आपको वोल्टेज पता चल जाएगा अगर आप यहाँ ये जो RL और C हैं इन्हें एडमिटेंस रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करें. ठीक, तो कुल मिला के द कंडीशन व्हिच वी हैव इज दिस. यू हैव एन AC current source with an impedance. Let's say the impedance has now been converted into an admittance and let me call it is equals to G. So G is equals to 1 upon R. ये मैं कंडक्टेंस में कन्वर्ट कर दिया उसे. फाइन. सिमिलरली अगर इंडक्टेंस L है तो Z रिप्रेजेंटेशन में या द कंट्रीब्यूशन ऑफ inductive reactance in the total impedance is written as JXL. Okay, that's how you write it. It is written at JXL. तो उस हिसाब से YL क्या हो जाना चाहिए? What it should be? What should be YL then? What would be YL? Tell me. 1 upon JXL. 1 upon JXL. तो सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे R की जगह 1 upon R कर रहा हूँ बिकॉज आई एम राइटिंग इट इन कंडक्टेंस फॉर्म, तो ये हो जाएगा YL विच इज इक्वल्स टू 1 upon JXL. और यहाँ पे हमारे पास है एक C. तो जो ZC कंट्रीब्यूशन होता है इट इज एज माइनस J अपॉन or it is written as minus of JXC where XC is equals to, you know that, 1 upon omega C. तो अब ये क्या हो जाएगा? What it would become? Or people write it as it is equals to 1 upon J omega C. It's easy.
तो अगर 1/ZC करेंगे तो you will get YC, and what YC will be? It would be just J omega C, right? So now all this has been converted into Y's or admittances. I can call this one as Y1, this branch as Y2, and this branch as Y3. So Y1, Y2, Y3 are three admittances connected in parallel. What will be the net equivalent admittance? Y total. बताएं, अगर admittances parallel में connected है तो equivalent कैसे निकालते हैं? Y1 plus Y2 plus Y3. It is written as Y1 plus Y2 plus Y3. So the total admittance will be what? It will be G plus J omega C plus 1 upon J omega L. ये JXL हो, उसे आप 1 upon J omega L लिख सकते हैं. Done? That's it. तो अब यहां से हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं that Y is equals to actually, अगर आप J कॉमन ले लें यहां से, omega C minus 1 upon omega L, because this J was in the denominator like this. Okay. Now the condition of resonance is, अब देखिए ये था आपका I am sin omega t, which is always a real number. तो कंडीशन रेजोनेंस की ये होती है कि आपका जो सोर्स करंट है और यहां से इस सोर्स करंट के अक्रॉस जो वोल्टेज है, मान लेते हैं ये हो रहा है Vs, इन दोनों के बीच में कोई फेज डिफरेंस ना हो तो उस कंडीशन को आप रेजोनेंस की कंडीशन बोलते हैं, और ऐसा जिस फ्रीक्वेंसी पे होता है उसे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं. फाइन. तो यहां से आप सिंपल एक चीज लगा सकते हैं दैट यूजिंग I is equals to V into Y, I is equals to V into Y, we will get, so if you use this you can find out what your Vs is. तो Is is equals to Vs into Y करके, तो बस Is upon Y करना है, you will get your Vs. That's it. But I is a real number and Y is an imaginary number. तो definitely अगर ऐसे देखें तो this Vs will then be a complex number. ये देखिए, क्योंकि y कॉम्प्लेक्स नंबर है तो एक रियल नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर से डिवाइड देंगे तो कॉम्प्लेक्स आ जाएगा. बट फॉर कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, इफ y इज ओनली अ रियल नंबर देन रेजोनेंस विल अकर. एंड y को रियल नंबर होने के लिए इस y के स्ट्रक्चर को देखें, तो क्या चीज जीरो हो जानी चाहिए? व्हाट शुड गो टू जीरो? Omega L minus omega C. So it is omega c minus 1 upon omega L because it is imaginary part. So for resonance to occur, we want the admittance should be real. And let's say it happened at a particular frequency omega naught. So at omega is equals to omega naught, what happens is your imaginary part of y becomes equals to 0. It means your omega c at या ओमेगा नॉट एल ये जीरो हो जाता है. अब ओमेगा की जगह ओमेगा नॉट लिख दिया है, सो इट बिकम्स जीरो. एंड यहां से हमें पता चला दैट एक्चुअली ओमेगा नॉट सी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ओमेगा नॉट एल हो रहा है, या कह सकते हो कि ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एल सी, या आप कह सकते हो ओमेगा नॉट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट एल सी. इट्स हैपनिंग लाइक दिस. फाइन. दिस इज हाउ इट इज हैपनिंग. ओके. So now you see that for circuits in which the arrangement of RL and C are in parallel, we are using admittance representation. Our input is a current source and our output is a voltage. Whereas जब हमने series type RLC resonance study किया था, our input was a voltage source and the output was current. तो जब आप रेजोनेंस का ग्राफ बना रहे थे तो ऑन वाई एक्सिस देयर वाज करंट. यू रिमेंबर दैट? ऑन वाई एक्सिस देयर वाज करंट. इन केस आपने अगर कल जो वीडियो भेजा था वो देखा है तो. आज हमने पैरेलल आरएलसी सर्किट देखा एंड वी हैव सीन इन दिस पैरेलल आरएलसी सर्किट दैट आवर इनपुट इज अ करंट एंड आवर आउटपुट इज अ वोल्टेज. तो आप अब जो ग्राफ बनाएंगे दैट विल बी इन बिटवीन वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी. कल जो ग्राफ बनाया था इट वाज इन बिटवीन करंट एंड फ्रीक्वेंसी. आज का ग्राफ इज इन वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी. और अगर आप वोल्टेज निकालें तो वोल्टेज विल बी नथिंग बट इक्वल्स टू आई
upon what is y? So y is g plus j omega c minus 1 upon omega l. This is it. अगर मैग्नीट्यूड की बात करें, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, तो वैसे तो आप जानते हैं v इज एनीवेज गोइंग टू बी कॉम्प्लेक्स नंबर, बट अगर मैग्नीट्यूड देखें तो इट वुड बी मैग्नीट्यूड ऑफ i डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस ओमेगा c माइनस 1 अपॉन ओमेगा l का होल स्क्वायर. एंड इन दिस कंडीशन ऑल्सो, अगर ओमेगा गोज टू 0, देन व्हाट विल हैपन टू द वैल्यू ऑफ v? बताएं. अगर ओमेगा 0 हो जाएगा तो देखिए ये टर्म हो जाएगा 0. मी जस्ट यूज अ येलो पेन. ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 1 अपॉन 0. तो व्हाट इट इज इन टोटल? माइनस ऑफ 1 अपॉन 0 इज माइनस इंफिनिटी, और माइनस इंफिनिटी का स्क्वायर Infinity. इंफिनिटी. इफ समथिंग इज i अपॉन इंफिनिटी तो टोटल क्या हो जाएगा? इट वुड टेंड टू 0. 0. And in case when you will have omega tending to infinity, in that case what will happen? If you have omega tending to infinity, then ये हो जाएगा infinity minus 1 upon infinity. So still it is an infinity there. So again I upon infinity, it would be 0. So your graph will again be something like this. At a particular point, so at omega equals to 0, your voltage will be 0. It will start to rise. At a particular point, it would be a maxima, and then it will start to decay. And at infinity, it would go to 0. And there is a point at which the maxima would occur, and we call that as a resonant frequency. Okay. So we call omega as resonant frequency, and the current or the voltage is now Vmax. Fine. So let us try to now find out what will be the voltage at Vmax. जैसा कल किया था. So your I is given as Im angle 0 with sin omega t. You all know that sin ka maximum value can be 1, and your y is equals to g plus j omega c minus 1 upon omega l. But you know that if I talk, what is v going to be? I'm sorry, this yellow pen will not work. What is v going to be? It is, what is the modulus of v? It is modulus of I upon under root of g square plus omega c minus 1 upon omega l ka square. But at resonance, I mean, I'm talking about omega naught c and omega naught l. You know that this term will go to 0. So you'll be left with that the maximum value of the voltage will be equals to I upon under root of g square, which is nothing but modulus of I upon g. So this is the maximum value of voltage which you will have. Fine. That's how you can do all further analysis, whatever we have done in the series case. Now, I left one assignment, although it was not an assignment, it is just gave it as a fact to you when we were doing the quality factor analysis. So you can make a table. Okay. So for आप टेबल बना लीजिए, रेजोनेंट कंडीशन, यहां पे हेडिंग डाल लीजिए रेजोनेंट कंडीशन. सीरीज हो सकती है, पैरेलल हो सकती है. ओके. और यहां हेडिंग डाल लीजिए क्वालिटी फैक्टर रिप्रेजेंटेशन. ओके. क्वालिटी फैक्टर रिप्रेजेंटेशन. अब ये दो तरीके से हो सकता है, एल बेस्ड या सी बेस्ड. ओके. क्वालिटी फैक्टर रिप्रेजेंटेशन दो तरीके का हो सकता है, एल बेस्ड या सी बेस्ड. याद रखिएगा, whenever you have a series connection of RLC circuit, then the quality factor for series connection is given by, note down, the quality factor for series connection is given by reactance at resonance
divided by resistance. Reactance at resonance, और ये reactance either हो सकता है, ये जो reactance है या तो XL वाला होगा या XC वाला होगा, कोई एक लिखना है, divided by resistance. जैसे कल जब हमने QS का फॉर्मूला डिराइव किया था, एनीवन रिमेंबर्स? 3 लोगों ने तो करीब 45 मिनट तक बड़े बोर होकर एक क्लास पूरी ली थी, वो वीडियो रिकॉर्डिंग जब प्ले की गई थी इन ऑनलाइन क्लास. रिमेंबर व्हाट वाज द फॉर्मूला फॉर Q क्वालिटी फैक्टर इन सीरीज? Omega naught upon bandwidth. इन टर्म्स ऑफ RLN अगर याद हो तो ओमेगा नॉट एल Omega बाई naught आर। L upon R. ओमेगा नॉट L अपॉन R. अगर आपसे पूछा जाए कि XL क्या होता है, द इंडक्टिव रिएक्टेंस, वो कैसे लिखते हैं? XL इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट एल। ओमेगा L, ओमेगा नॉट L नहीं, जनरली ओमेगा L लिखते हैं. और अगर पूछा जाए कि ये रिएक्टेंस एट रेजोनेंस क्या होगा, तो क्या बदला जाएगा? L तो फिक्स रहेगा, ओमेगा की जगह क्या लिख देंगे आप? ओमेगा नॉट इनटू L अपॉन R. और इसी को अगर आपको कैपेसिटेंस के फॉर्म में लिखना है तो XC क्या होता है? XC क्या होता है? 1 अपॉन ओमेगा C. तो रिएक्टेंस जो कैपेसिटिव है एट रेजोनेंस क्या हो जाएगा? 1 अपॉन ओमेगा नॉट C और डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस मतलब R. यू हैव दैट. तो जब सीरीज रेजोनेंस हो रहा है तो क्वालिटी फैक्टर आता है ये. तो L बेस क्वालिटी फैक्टर अगर मैं सीरीज के लिए लिखूं तो इट वुड बी ओमेगा नॉट L अपॉन R, या फिर अगर कैपेसिटेंस से रिलेट करके लिखना है तो इट वुड बी 1 अपॉन ओमेगा नॉट RC. फाइन. वहीं अगर पैरेलल कंडीशंस में आपसे पूछा जाए कि क्या होगा आपका क्वालिटी फैक्टर, तो QP इज डिफरेंट. QP इज गिवन बाय resistance upon reactance at resonance. ठीक. तो QP रेजिस्टेंस तो आ रही है. सी, आई एम यूजिंग रेजिस्टेंस नॉट कंडक्टेंस, रिमेंबर दैट. रेजिस्टेंस आ रही है, अपॉन क्या हो जाएगा? अगर रिएक्टेंस एट रेजोनेंस फॉर L देखें तो देखिए रिएक्टेंस की डेफिनेशन नहीं चेंज होती है. क्या हो जाएगा फिर ये? ओमेगा नॉट एल या फिर R अपॉन 1 अपॉन ओमेगा नॉट C विच इज नथिंग बट R ओमेगा नॉट C. तो पैरेलल कंडीशंस में योर वैल्यू बिकम्स R अपॉन ओमेगा नॉट L या R इंटू ओमेगा नॉट C. तो प्रॉब्लम क्या होती है, आप देखें, अगर ज्यादा क्वालिटी फैक्टर चाहिए तो रेजिस्टेंस को क्या करना पड़ेगा? अगर सीरीज में आपको ज्यादा क्वालिटी फैक्टर चाहिए देन व्हाट यू विल डू टू द रेजिस्टेंस? कम करेंगे. लेकिन हर एक सिस्टम की एक लिमिट होती है, आप उस रेजिस्टेंस को उससे ज्यादा कम नहीं कर सकते. जैसे मैं आपको बताता हूं, यू हैव अ जनरेटर एंड यू हैव अ रिसीवर और बीच में आपके पास है एक ट्रांसमिशन लाइन. तो एक चीज जिसे कहा जाता है कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस, अगर वो कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस मैच नहीं करेगा, यानी कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस मैच नहीं करेगा, तो जो पावर है वो लौट के आ जाएगी. इसका जनरल एग्जाम्पल एक मैकेनिकल एग्जाम्पल से आप ऐसे समझ सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ये एक नदी है, ओके, और इसकी जो चौड़ाई है करीब, वो मान लेते हैं 100 मीटर्स की है. ठीक, जो ये नदी है इसकी चौड़ाई 100 मीटर्स की है. एकदम से क्या हुआ, आपने ये ऐसे ही बह रही थी, आगे बह रही थी, आपने क्या किया, इसकी चौड़ाई को मात्र 2 मीटर का कर दिया. देन व्हाट विल हैपन? व्हाट डू यू एक्सपेक्ट मैकेनिकली क्या होना चाहिए? फ्लो बहुत तेज हो जाएगा. पहली चीज तो यहाँ जो फ्लो है वो बढ़ जाएगा. दूसरी चीज, ये जो स्ट्रीम है वो लौट के भी जाने लगेगी थोड़ी थोड़ी सी. क्यों? क्योंकि यहां पर जो प्रवाह का
हम लोग इम्पीडेंस प्रोवाइड कर रहे थे, इम्पीडेंस मतलब रुकाव या कोई अवरोध जो पैदा कर रहे थे इस पानी के बहने का, वो कम था। जितनी चौड़ी जगह होगी उतनी आसानी से पानी फैल पाएगा, और जितनी सकड़ी जगह होगी उतनी ही कठिनाई से पानी फैलेगा। भले ही स्ट्रीम भले ही तेज प्रेशर से फैलेगा, लेकिन कठिनाई होगी, टर्बुलेंस ज्यादा हो जाएगा। तो जैसे ही आपने फ्लो कंडीशंस बदल दी, आपका जो पानी का करंट है वो कुछ कुछ लौट के आने लगा, वहां स्वेल से दिखने लगेंगे आपको। सबसे ज्यादा जो केओस होगा वो इस जगह दिखेगा। ओके, तो ये तो हो गया एक बहुत मैकेनिकल एग्जांपल। सेम ऐसा ही इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम्स में भी होता है। जैसे यू हैव अ डिवाइस जिसमें कुछ होता है इनपुट इंपीडेंस, एक होता है आउटपुट इंपीडेंस। ज्यादातर पैसिव डिवाइसेस, जैसे मान लीजिए आपका मोबाइल फोन या यहाँ पे जो टेस्ट बेड्स होते हैं जीएसएम का या एफएम रेडियो में जो एसएमए कनेक्टर्स आते हैं, उन सबका इंपीडेंस करीब करीब 50 ओम से लेकर 75 ओम तक रखा जाता है। ठीक है, कन्वेंशनल डिजाइन है। एक IEEE स्टैंडर्ड्स या स्टैंडर्ड्स के हिसाब से लोगों ने मान लिया है कि जो भी आप हाई फ्रिक्वेंसी मोबाइल कम्युनिकेशन या कुछ डिजाइन करेंगे, उसका इनपुट इंपीडेंस जो है वो 50 ओम से 75 ओम के बीच रहना चाहिए। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि गड़बड़ हो जाती है। अगर गड़बड़ हो गई, यानी 50 ओम से आपने कर दिया 10 ओम या 75 से कर दिया 175 ओम, तो परफॉर्मेंस खराब हो जाती है डिवाइस की, बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। क्योंकि हम फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव ऑपरेशंस करने की कोशिश करते हैं, तो टोटल गेन लॉस हो जाता है। मतलब हम लोग जिस तरीके से अपने डिवाइस को काम करवाना चाह रहे थे वैसा नहीं हो पाता है। वॉइस क्वालिटी खराब हो जाएगी। आप अगर वीडियो ट्रांसमिट करने की कोशिश कर रहे हैं तो वीडियो स्टैमर करने लगेगी या बफर लेने लगेगी। जो डिवाइस की एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो खराब हो जाती है। ओके, ऐसे ही ऑडियो जैक्स का भी होता है। कभी कभी हम लोग इम्पीडेंस मैच करते नहीं है, बस देखा कि ये पिन तो मैच कर रही है, लगा दी और हो गया काम। बट इट डज नॉट वर्क लाइक दिस। या फिर व्हाट पीपल डू इज, जो MI का चार्जर है या जो अडेप्टर है उससे फोन चार्ज करने लगेंगे अगर आप आईफोन को, तो हो सकता है कि उनके बिल्ट में जो बैटरी का बिल्ट है उनका इनपुट इंपीडेंस मैच ना हो। तो अगर कंपनी में एक डिफरेंट है तो आपका डिवाइस डैमेज हो सकता है। खैर, इतनी सारी कहानी इंपीडेंस मैचिंग की क्यों बताई? बिकॉज इट इज वेरी क्रूशियल टू मीट द क्राइटेरिया ऑफ इंपीडेंस मैचिंग इफ यू आर इन इंडस्ट्री ऑफ फैब्रिकेशन या डिजाइनिंग। हालांकि थियरी में तो सब चलता है, क्या करना है सर, बढ़ा लो घटा लो, इक्वेशन ही तो है। बट व्हेन यू आर इन इंडस्ट्री, आपको 50 से 75 ओम से ही जूझना पड़ता है। ठीक है, लोगों की पूरी पूरी 5 साल की PhD गुजर जाती है केवल इस 50 से 75 ओम में अपने डिवाइस को लाने में। खैर, लेकिन यहां हम कह रहे हैं कि भाई रेजोनेंस आपका तब बढ़ेगा जब आप, या हम कह रहे हैं क्वालिटी फैक्टर आपका तब बढ़ेगा जब आप रेजिस्टेंस को कम कर देंगे। लेकिन मैंने आपको बताया कि जरूरी नहीं है कि आप रेजिस्टेंस को बहुत कम कर पाए। इतना कम तो नहीं कर सकते, इससे ज्यादा तो कम नहीं कर पाएंगे। और डिमांड आपकी है कि नहीं, हम हाई फ्रीक्वेंसी में भी जाएंगे और रेजिस्टेंस भी कम करेंगे। देयर कैन बी पॉसिबल रीजंस। तो फिर आप पैरेलल कॉम्बिनेशन पे आ सकते हैं जहां पे रेजिस्टेंस बढ़ाने पे क्वालिटी फैक्टर बढ़ता है। ओके, बट देयर इज अ ट्रेड ऑफ। रेजिस्टेंस तो बढ़ा लोगे, क्वालिटी फैक्टर बढ़ेगा, लेकिन जैसे जैसे हाई फ्रीक्वेंसी पे जाते जाओगे फिर क्या होगा? क्वालिटी फैक्टर रिड्यूस होता जाएगा। रिड्यूस होता जाएगा। तो दोनों ही चीजें देखकर चलनी पड़ती है। ओके, और फिर उसका जो इलाज निकाला है लोगों ने वो है हाइब्रिड टाइप ऑफ सर्किट। ऑल्दो पीपल कॉल दैट एज जस्ट अ पैरेलल सर्किट या पैरेलल रेजोनेंस का एग्जांपल, लेकिन वी कैन कॉल दैट हाइब्रिड टाइप ऑफ सर्किट। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पेज। केवल अभी नहीं, MSc के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सेमेस्टर में, प्लस अगर आप MPhil करते हैं उसमें, PhD करते हैं उसमें, नेट के एग्जाम में, गेट के एग्जाम में, जेस्ट के एग्जाम में, ये बहुत इंपॉर्टेंट पेज है। ओके, इसे नोट करके रखिएगा। यू वुड यूज इट, यू वुड यूटिलाइज इट। आपको यकीन नहीं होगा, व्हेन यू विल लर्न फोटोनिक्स एंड लेजर्स, तब भी यही सारी चीजें यूज हो रही होंगी। आप कहेंगे लेजर का क्या लेना देना नेटवर्क थ्योरी से? इट इज नॉट फॉर्मिडेबल। नेटवर्क थ्योरी कहीं भी अपनी जगह बना लेती है। ठीक है, कंप्यूटर्स वाले पढ़ रहे हैं, सोचो। खैर, हैव यू टेकन द स्क्रीनशॉट ऑफ इट? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग। हैव यू टेकन इट? At least a yes or no I can expect from you.
Yes, sir. Yes, sir. Okay, then I would stop the recordings over here, and then in the next part we'll move on to another topic.